Morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning, sir. Okay. Chaliye. Tell me, what are the doubts in our assignment 3? Sir, question number 6. Question number 6. ओके चलिए और बताइए 6 के अलावा। ओके हमने नोटिस तो कर लिया। सर असाइनमेंट बताएं सर। कल जो दिया था असाइनमेंट 3। सर कुछ थ्योरी प्रॉब्लम से डाउट था और ठीक जो है, कल तो बताया पहले आप असाइनमेंट की क्वेश्चंस पूछ लीजिए, उसके बाद में थ्योरी पार्ट देख लेंगे। Sir, question number 10. क्वेश्चन नंबर 10। ओके 12th or 13th? 12th और 13th। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। Okay. So first, let us discuss question number 6 is a spaceship of. Just 1 minute. Okay. चलिए. So first, let us discuss question number 10. Question number 10. A freight car of mass mc contains a mass ms of sand. ठीक. तो freight car है. At t is equal to 0, a constant horizontal force of magnitude F is applied, and at the same time, a part in the bottom is open to let the flow at a constant rate. The speed when all the sand is gone is. तो ये तो exactly rocket वाला है सर। So this is a cart. Okay, and there is a suppose hole here from where sand is going down. Okay. चलिए अब initially जो है initially मास कितना है, टोटल मास है ना, mc plus ms. Okay, mc is the mass of the cart and ms is the mass of the sand. Finally जब बताइए मास कितना हो जाएगा फाइनली, है ना, mf तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ mc हो जाएगा। Okay, चलिए there is one more thing we have to find out here. बताओ यहाँ पर अगर किसी टाइम t पे अगर ये है तो बताइए यहाँ पर अगर ये वेलोसिटी v से जा रहा है तो vg कितना होगा, v होगा। यस। चलिए अब उसने बोला है कांस्टेंट फोर्स f इज अप्लाइड, तो f कांस्टेंट फोर्स तो अप्लाई हो ही रहा है। ओके, सो लेट अस राइट डाउन आवर इक्वेशन व्हिच इज f प्लस vg इनटू dm by dt is equal to m into dv by dt plus
dm by dt into, अच्छा उसने दिया हुआ है कि dm by dt इज इक्वल टू, रेट इज दिया हुआ है b, तो रेट ऑफ फ्लो है b, तो dm by dt कितना हो जाएगा? बी 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 होगा ना, बी माइनस भी होगा ना, नेगेटिव का बी हो, यस। है ना, क्योंकि सैंड जो है बाहर जा रही है ना, ठीक है ना, तो dm by dt विल बी माइनस b, ठीक है, चलिए ओके, सो फ्रॉम हियर, चलिए अब आगे चलते हैं। सो f इज गिवन, ओके, vg is equal to v into, here it will be equal to dm by dt, dm by dt माइनस minus minus b is equal to m into dv by dt, m into dv by dt plus dm by dt is minus b. Okay. So now tell me, here this part will be cancelled. यस, F will be equal to m into dv by dt. Okay. So now tell me, from here dm by dt is equal to minus b. So we can write the equation as dm is equal to minus b into dt. Okay. So if we integrate this equation, so from 0 to t, you know, m initial to some m. Okay. So बताइए m initial कितना है? MC plus MS mc plus ms. Okay. So now m minus mc plus ms is equal to minus b into t. Okay. So at any point of time, m is equal to mc plus ms minus bt. Okay. So from here if we'll write f plus, f is equal to m की वैल्यू रख देंगे mc plus ms minus bt into dv by dt. Okay. So from here we will get f dt divided by mc plus ms minus bt is equal to, okay, चलिए, so from here it will be 0 to b. Okay. अब बताइए t कहां से कहां तक होगा? t 0 से लेकर कहां तक होगा? MC तक सॉरी ना? तो t कहां तक होगा? टाउ तक सपोज। टाउ कब होगा? जब सारा का सारा सैंड जो है निकल जाएगा। तो सारा का सारा जब सैंड निकल जाएगा तो बताइए m कितना हो जाएगा जब सारा का सारा सैंड निकल जाएगा? MC Zero. mc हो जाएगा इक्वल टू mc प्लस ms माइनस b इंटू टाउ। टाउ आपका आ जाएगा ms बाय b। तो यहाँ पर टाउ की वैल्यू आ जाएगी ms बाय, बस यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए और इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, v की वैल्यू आ जाएगी। ओके, चलिए
लिख लिया सबने? Yes, sir. Let's move on. Sure. Let us discuss question number 6. Okay. So in the question number 6 says, a spaceship of mass capital M enters a stationary dust cloud of mass density rho with speed v naught. ठीक है, तो there is a, यहाँ पर जो है आपका कुछ डस्ट है, ये आपका डस्ट है, डस्ट क्लाउड, और उसका डेंसिटी जो है वो रो, ठीक है। अब स्पेसशिप जो है आता है यहाँ से, है ना, एक स्पेसशिप आता है, वो एंटर करता है वेलोसिटी v नॉट से, दैट इज एंटरिंग विद वेलोसिटी v नॉट, यहाँ से ये एंटर करता है, ठीक है। अब एंटर करने के बाद में ये 10 पार्टिकल इससे स्टिक हो जाएंगे, ठीक है। तो सपोज किसी इंस्टेंट पे सपोज पार्टिकल जो है, अब सपोज इसको मैं फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसको मैं इस तरीके से ले लेता हूँ, इस तरीके से ये स्पेसशिप, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ये स्पेसशिप, ठीक है। चलिए, तो सपोज एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे सपोज ये वेलोसिटी v से जाता है ना। चलिए, अब हमें निकालना है कि if the dust particle are assumed to stick to the face, its speed at interval t is, तो t टाइम पे निकालना है इसका क्या होगा वेलोसिटी, ठीक है। चलिए, तो इसमें सबसे पहले मुझे बताइए, यहाँ पर एक तो स्पेसशिप है, ठीक है, जो कि मास का है, सॉलिड मास का, ठीक है ना, कैपिटल M का। चलिए, अब स्पेसशिप जब आगे जाएगा, ठीक है, तो इससे एक डस्ट वाला रीजन जो है इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो डस्ट वाला रीजन कौन सा है, इसके जो आगे आगे जो आता जाएगा वो इससे स्टिक होता जाएगा, ठीक है। तो किसी टाइम इंटरवल dt पे बताइए इसके ऊपर कितना dm लगेगा, तो यहां से लेकर dt पे कितना ट्रेवल कर लेगा, ये कितना ट्रेवल कर लेगा ये vdt, ठीक है। तो आपका dm इतना इस स्पेसशिप पे चिपक जाएगा, है ना। तो बताइए dm क्या होगा, dm इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो dm इज इक्वल टू, बताइए डेंसिटी कितना है इसका, डस्ट का रो दिया हुआ है, VDT. अब बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया, लेंथ कितना है और एरिया ए दिया हुआ है, ठीक है। तो यहां से अगर मैं निकालूं dm by dt, तो व्हाट विल बी dm by dt, दिस विल बी इक्वल टू v इंटू a इंटू रो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज इक्वल टू v इंटू a इंटू रो। चलिए, तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गई कि इस तरीके से मास जो है बढ़ता जा रहा है, इतना इतना मास आगे स्टिक होता जा रहा है, ठीक है। ओके, नाउ टेल मी वन मोर थिंग, यहां पर ये जो डस्ट है, एडेड मास, ये वाला मास तो सॉलिड मास है जो चल रहा है, मतलब ये तो सिस्टम है हमारा, जो एडेड मास है वो ये वाला है। तो बताइए इस मास का vg कितना है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो है ना, क्योंकि इनिशियली तो रेस्ट पे ही है वो, समझ के बात। vg क्या होता है, vg इज द वेलोसिटी ऑफ द एडेड मास विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो एडेड मास ये वाला है, इस मास की वेलोसिटी क्या है, जीरो ही तो है ना, स्टेशनरी तो है,
तो दैट्स व्हाई Vg इज इक्वल टू 0। चलिए अब हमारी इक्वेशन लिखते हैं, मास्टर इक्वेशन क्या है, F एक्सटर्नल प्लस Vg इंटू dm by dt is equal to d by d sorry m into dv by dt plus dm by dt into ओके। नाउ टेल मी, इस स्पेसशिप पे कोई एक्सटर्नल फोर्स दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। No, sir. अच्छा, Vg कितना है? 0 है। इसका मतलब क्या है, इक्वेशन हमारे पास आ गई कि m into dv by dt plus dm by dt into v is equal to 0। ठीक है, या फिर क्या है ये, d by dt ऑफ mv, वही बात है, mv is equal to 0। ठीक है, चलिए, है ना। अच्छा, अब बताइए ये इक्वेशन क्या कहती है, d by dt ऑफ mv is equal to 0। हमें निकालना क्या है, उसकी वेलोसिटी। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ इनिशियल मास और एरिया और वी नॉट। चलिए अब बताइए, d by dt ऑफ mv is equal to 0, इसका मतलब क्या है कि m into v is constant। इसका मतलब क्या है कि m into v इनिशियली जो है वो m into v एट एनी टाइम फाइनल, है ना। तो बताइए इनिशियली मास कितना है, जब एंटर करने से जस्ट पहले मास कितना है इसका, कैपिटल M, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इज इक्वल टू m into v। तो यहां से m आपका आ जाएगा m into v नॉट बाय, एक इक्वेशन आ गया। चलिए तो बस रख दीजिए इसको यहाँ पे, तो m की वैल्यू आ जाएगी यहां से आपकी, m की वैल्यू आ जाएगी m इंटू वी नॉट बाय v इंटू डी वी बाय डी टी प्लस dm बाय डी टी। dm बाय डी टी क्या आ जाएगी वैल्यू, v a इंटू रो इंटू एक v पहले से है तो यहाँ पे v स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। नहीं सॉरी, यहाँ पर है m की वैल्यू तो ठीक है ना, m v नॉट बाय v, बिल्कुल सही बात है, dv बाय dt इज करेक्ट, dm बाय dt इज v a, हाँ करेक्ट करेक्ट, दिस इज करेक्ट। dv बाय dt आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, dv बाय dt आपका आ जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा ये अगर, तो माइनस इधर है v और इधर है v, तो v क्यूब हो जाएगा, माइनस v क्यूब और a रो बाय m v, है ना, dv बाय dt माइनस v क्यूब a रो बाय m। ठीक है, तो अगर हम इसे डिफरेंशिएट करना चाहें तो v वाले एक साथ ले आएंगे, तो dv बाय v क्यूब इज इक्वल टू a रो बाय m v नॉट इंटू माइनस dt। चलिए अब इसकी लिमिट रख देंगे v नॉट से लेकर v तक और 0 से लेकर t तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बताइए, 1 बाय वी क्यूब, तो इसका हो जाएगा v टू द पावर -2 बाय -2 v नॉट से लेकर v इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस a रो बाय m v नॉट। यहां से आप v निकाल लीजिएगा, बस वैल्यू रखें।
सर यहाँ पे एम भी रेट ऑफ मोमेंटम सर इक्वल टू 0 कैसे हो गया सर, ये नहीं समझ पाया। इस इक्वेशन से हो गया ना, एफ एक्सटर्नल प्लस वीजी डीएम बाई डी इज डी एम डी बाई ओके सर, डी। ठीक है। सर थोड़ा बैक स्लाइड कर दीजिए। चलिए आगे चलें। Okay. So first let us see question number 13, then we will see 12. 13 says a hollow metal sphere is filled with a thick, highly viscous oil, is rotating about a vertical axis with an initial angular velocity omega naught. ठीक है, चलिए. However, there is a small hole at the bottom of the sphere through which the drops of the oil are leaking at a steady rate. ठीक है. The variation of angular velocity omega t with time t. अच्छा, तो इनिशियली जो है एक हॉलो स्फीयर है, वो फिल्ड है पूरा, इस तरीके से रोटेट हो रहा है. अब यहां पर से ये रिलीज होता जा रहा है, तो किसी एक टाइम पे जो है ये कम होते होते कुछ इस तरीके का हो जाएगा. तो हमें निकालना है किसी टाइम पे कितना एंगुलर वेलोसिटी होगा. सी दिस इज इसका वेरिएबल मास सिस्टम से कोई मतलब नहीं. दिस इज जस्ट द प्रॉब्लम ऑफ एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन. यस जैसे सिस्टम का जो है इनर्शिया चेंज हो रहा है, ठीक है. तो एल इनिशियल इज इक्वल टू एल फाइनल. इसका मतलब क्या है, और एल क्या होता है बताइए. आई ओमेगा. आई ओमेगा. तो आई ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट. आई ओमेगा कांस्टेंट है, इसका मतलब है कि डी बाई डी टी ऑफ आई ओमेगा इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि डी आई बाई हमें ओमेगा वर्सेस टी निकालना है ना, तो डी आई बाई डी टी इंटू ओमेगा प्लस आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू. तो यहां से आपका आ जाएगा डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई आई इंटू डी आई बाई. चलिए, तो डी ओमेगा बाई डी टी ये, ठीक है. अब बताइए, ठीक है, अब सपोज मैं इनिशियल की बात करता हूं, ठीक है. तो इनिशियल की बात करता हूं तो अब बताइए, इनिशियली की बात करता हूं मैं, तो जो मास कम होगा सिस्टम का, वो मास कहां से कम होगा, यहां से कम होगा. समझ गए बात. यस चलिए, अब थोड़े समय के बाद जो मास कम होगा, वो मास सपोज यहां तक आ चुका है, तो वो मास यहां से कम होगा, ठीक है. अब जब आधा हो जाएगा, तो वही मास उतना का उतना ही यहां से कम होगा, ठीक है. तो बताइए, आपका नाम सपोज टी इज इक्वल टू आपका सपोज ये 0 है, टी इज इक्वल टू टी 0 है, टी 1 है,
और सपोज ये टी हाफ, क्योंकि यहां तक आधा खाली हो चुका है। तो बताइए यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट ऑफ, मतलब कि जितना चेंज होगा वो यहां पर ज्यादा होगा, यहां पर ज्यादा होगा, या यहां पर ज्यादा होगा, बताइए। देखिए यहां पर जो भी मास कम हुआ है वो एकदम एक्सिस के पास वाला कम हुआ है, Yes, sir. Yes. है ना। तो डी आई एट टी इज इक्वल टू 0, डी आई एट टी इज इक्वल टू 1 और डी आई एट टी इज इक्वल टू टी। तो यहां पर जो भी मास कम हुआ है वो एक्सिस के पास वाला ही कम हुआ है, मतलब डी आई कम होगा यहाँ पे। यहां पर जो मास कम हुआ है वो एक्सिस से थोड़ा सा दूर मास कम हुआ है, इसका मतलब डी आई थोड़ा ज्यादा होगा। यहां पर जो मास कम हुआ है वो एक्सिस से काफी ज्यादा दूर कम हुआ है, तो यहाँ पर डी आई काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या है कि डी आई एट टी इज इक्वल टू 0 लेस देन दिस। इसका मतलब क्या है कि डी आई बाई डी टी जो है वो इंक्रीज हो रहा है फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 से लेकर, मतलब मॉडुलस इसका इंक्रीज हो रहा है। इसका मॉडुलस की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो नेगेटिव साइन है ना। फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू टी इज इक्वल टू टी, ठीक है। अब बताइए, अब t इज इक्वल टू टी हाफ से बात करता हूं मैं, है ना। अब यहां पर डी इतना है। अब इसके बाद मैं वापस से सपोज t इज इक्वल टू T2 की बात करता हूं, तो अब जो है इतना आ चुका है। फिर t इज इक्वल टू टी फाइनल जो है मतलब T3, वो बस आखिरी लिमिट बचा है इसका इतना, ठीक है। तो अब बताइए यहां से यहां से यहां से डी का मॉडुलस कम होगा कि बढ़ेगा? अब रिवर्स हो जाएगा, है ना। तो अब जो है Yes, sir. डी आई बाई डी टी का मॉडुलस जो है कम होगा फ्रॉम टी इज इक्वल टू टी बाई टू टू टी, है ना। यहाँ पर सबसे ज्यादा डी होगा, यहाँ पर थोड़ा कम होगा, फिर थोड़ा कम होगा, और यहाँ पर सबसे कम, ठीक है। मतलब डी आई बाई डी टी का मॉडुलस जो है वो पहले बढ़ रहा है 0 से लेकर टी बाई टू तक, और फिर कम हो रहा है। पहले क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि पहले जो है मास एक्सिस के पास था, फिर दूर था दूर था दूर था, फिर यहाँ पे लिमिट आएगी जब टी बाई टू पे सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब क्या है कि डी ओमेगा बाई डी टी जो है, एक मिनट कहाँ पे लिखूं मैं स्पेस, यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि जो मॉडुलस ऑफ डी ओमेगा बाई डी टी है वो क्या होगा, ये प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी है, तो मॉडुलस इसका बढ़ेगा फ्रॉम 0 से लेकर टी बाई टू तक, और फिर कम होगा फ्रॉम टी बाई टू से लेकर टी। अब बताइए ग्राफ दिए हुए हैं ओमेगा और टी के, तो डी ओमेगा बाई डी टी क्या रिप्रेजेंट करता है बताइए? एंगुलर एंगुलर एक्सीलरेशन। डी ओमेगा बाई डी टी स्लोप रिप्रेजेंट करता है ओमेगा बाई टी का, करेगा. यस सर। है ना। तो बताइए, तो स्लोप जो है 0 से लेकर टी तक बढ़ना चाहिए, है ना, और फिर टी बाई टू से लेकर टी तक घटना चाहिए, ठीक है। तो बताइए अब ए पार्ट में देखिए, ए पार्ट, इसको मैं सपोज यहां पर रब कर दे रहा हूं। ए पार्ट देखिए, अब बताइए ए पार्ट ए में यहां से यहां से यहां से यहां तक जा रहा है, ये टी बाई टू सपोज। तो बताइए स्लोप बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं? Yes. यहाँ पर स्लोप इतना है, फिर यहाँ पर स्लोप इतना है, फिर यहाँ पर स्लोप इतना है, तो स्लोप बढ़ रहा है। हाँ बिल्कुल सर। सही बात। अब टी बाई टू से लेकर टी तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक स्लोप घट रहा है कि नहीं घट रहा है? यस सर। घट रहा है। Yes. यस Yes. सर। यहाँ तो स्लोप बढ़ रहा है आपका, और यहाँ स्लोप घट रहा है, मतलब ए वैलिड आंसर है, ठीक है। Yes, sir. चलिए, अच्छा अब बताइए डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में
डी में क्या प्रॉब्लम है? डी में देखिए स्लोप जो है यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है, तो डी में शुरू से ही स्लोप घट रहा है, जो कि गलत है। इनिशियली स्लोप बढ़ना चाहिए फिर घटना चाहिए। बी तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि बी में जो है ओमेगा ही कम हो रहा है, जबकि ओमेगा तो हमेशा बढ़ेगा ही, कि आई तो हमेशा ही कम हो रहा है, ठीक है। और सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि सी में पहले स्लोप घट रहा है और बाद में बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। ओमेगा बाई आई का फैक्टर आपने क्यों छोड़ दिया यहाँ पे? मतलब मैं नेचर देख रहा हूँ। सर तो आई भी तो वेरी कर रहा है ना ओमेगा के साथ। क्या हुआ? सर डी ओमेगा बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा बाई आई का फैक्टर भी है ना? यस, माइनस ओमेगा आई का भी है। तो सर आई जैसे चेंज कर रहा है टाइम के साथ, तो ओमेगा बाई आई में भी वेरिएशन आएगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा है ना, तो ओमेगा बाई आई क्या है? एल है। ओमेगा बाई आई नहीं नहीं, ओमेगा बाई एल नहीं है। हाँ, just 1 मिनट। L. ओमेगा बाई आई को मैं रखूं अगर मैं, आई घट रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं इसमें। आई घट रहा है तो ओमेगा बढ़ रहा है। हाँ, ओमेगा बढ़ तो रहा सर ओवरऑल वो क्वांटिटी बढ़ेगी ना? है। ओवरऑल वो क्वांटिटी बढ़ेगी। यस यस, और आप मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो डी आई बाई डी टी भी बढ़ ही रहा है, तो ओवरऑल फिर डी ओमेगा बाई डी टी बढ़ेगा, ऐसा है? यस। सर ठीक है, ओके। अच्छा, आपको 12 वाले में क्या डाउट रहा? 12 वाले में 12 वाला किसने पूछा था? A raindrop falls under gravity and captures water molecules from the atmosphere. Okay, its mass changes at the rate of lambda mt. Where lambda is a positive constant, mt is this. Assume that the acceleration of the gravity is constant. चलिए, which of the following is correct? चलिए इसमें इक्वेशन लिखते हैं। तो रेन ड्रॉप जो है मास फॉल हो रहा है, इट्स मास चेंज एट द रेट lambda mt, ठीक है। इसका मास है सपोज, इसकी वेलोसिटी v, dm by dt दिया हुआ है lambda, और lambda is a constant और mt is a spontaneous mass. Assume that the acceleration is g और water ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स आर एट रेस्ट स्ट्रेच पर व्हाट, ठीक है। तो यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल्स है, उसने बोला है कि ये इनिशियली रेस्ट पे है, तो ये वाले वाटर मॉलिक्यूल्स इसे स्टिक करेंगे। तो बताइए इनका वीजी कितना है? V 0. 0 दिया है ना उसने, ठीक है। चलिए, तो assume that the acceleration due to gravity is constant, water molecules at rest with respect to what, ठीक है, तो ये रेस्ट दिया है। What is the following is correct? The speed of the raindrop, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा एफ एक्सटर्नल प्लस वीजी इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डी एम बाई डी टी इंटू। चलिए, अब यहाँ पे एफ एक्सटर्नल कितना है बताइए। सपोज इधर मेरा पॉजिटिव वाई ले रहा हूँ, इधर मोशन हो रहा है, तो एफ एक्सटर्नल कितना है बताइए। एम जी है, ग्रेविटी लगेगा प्लस वीजी तो 0 है, इज इक्वल टू एम इंटू डी वी बाई डी टी प्लस डीएम बाई डी टी इंटू वी। तो डीएम बाई डी टी कितना हो जाएगा बताइए, लेमडा एम दिया इंटू वी, तो यहां से एम कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए, जी माइनस लेमडा वी
is equal to dv by dt. So dt is equal to dv by g minus lambda v, है ना? तो यहाँ से आपका आ जाएगा 0 से v, 0 से t. तो t इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा बताइए, ln तो ये हो जाएगा माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू ln, जब v रखेंगे तो आएगा g माइनस लेमडा v, और जब 0 रखेंगे तो आएगा g. ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा, इसको अगर उल्टा कर दें, नहीं उल्टा नहीं, ये माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू ln 1 माइनस लेमडा v अपॉन g. तो ये आ जाएगा e टू द पावर माइनस लेमडा टी इज इक्वल टू 1 माइनस लेमडा v बाय g. तो लेमडा v बाय g इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा t. तो v इज इक्वल टू g बाय लेमडा 1 माइनस e टू द पावर माइनस लेमडा t. ये आ जाएगा, है ना? चलिए, तो बताइए ये क्या है? द रेन ड्रॉप इंक्रीजेस लीनियरली विद टाइम. तो लीनियर है क्या ये? लीनियर तो नहीं. द रेन ड्रॉप इंक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम. एक्सपोनेंशियली भी नहीं है, केवल और केवल ये नहीं है, डिक्रीज हो रहा है. फॉर 1 भी है, बी भी गलत. सी कहता है द स्पीड ऑफ द रेन ड्रॉप अप्रोचेस अ कांस्टेंट वैल्यू व्हेन लैम्डा टी इज ग्रेटर देन 1. तो लैम्डा टी काफी बड़ा होगा, तो e टू द पावर माइनस में काफी बड़ा, तो ये 0 हो जाएगा. Yes, sir. ये 0 हो जाएगा, तो v अप्रोच किसको करेगा? कांस्टेंट g बाय लैम्डा को. तो By कांस्टेंट सी आपका सही हो जाएगा. तो आपका आंसर सी हो जाएगा. ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं. लिखे सब नहीं? Yes, sir. चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं.
तो सपोज आपका एक चेन है इनिशियली, ये चेन है आपका इनिशियली और ये L लेंथ का है। तो सबसे पहले तो जब ये फिर नीचे आएगा, गिरेगा ग्रेविटी के अंदर, तो गिरेगा ये, सपोज एक टाइम के बाद में जो है ये x गिर जाता है, x गिर जाता है, ये सपोज ऊपर बचता है L माइनस एक्स। तो ये यहां से रिलीज किया गया, जब ये था तब इसको रिलीज किया गया। तो जब ये नीचे गिरेगा तब पूरी चेन की वेलोसिटी क्या होगी, आपको ये निकालना है एट दिस पॉइंट, ये निकालना है। ठीक है, बताइए क्या होगा। इस मोमेंट पे इसकी वेलोसिटी कितनी होगी? √2x/g वेलोसिटी का √2gx होगा। देखिए ये चेन जो है फ्री फॉल कर रहा है ना। तो फ्री फॉल करते वक्त अगर कोई पार्टिकल या एलिमेंट अगर x डिस्टेंस से नीचे ट्रेवल करता है तो कितनी वेलोसिटी गेन करता है वो? √2gx गेन करता है वो। यस सर। इसीलिए इसकी वेलोसिटी हो जाएगी √2gx। 2x/g आप बोल रहे हैं, वो टाइम बोल रहे हैं। यस सर, टाइम यस। हाँ ध्यान नहीं दे। ठीक है, तो इतनी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पार्ट ए तो ये होगा कि वेलोसिटी इतनी गेन कर लेगा। अब पार्ट बी लिखिए। सपोज आपका यहाँ पर एक वेइंग मशीन है, तो वेइंग मशीन क्या मेजर करता है? नॉर्मल फोर्स मेजर करता है। कैलकुलेट the reading of weighing machine at this instant. इस इंस्टेंट पे जब x गिर चुका है वो, ठीक है, तो रीडिंग। चलिए अब बताइए, अगर मैं इस सिस्टम को यहाँ पर, ये सपोज है और ये सिस्टम है आपका, ये सिस्टम है। अब इस सिस्टम के ऊपर नॉर्मल लग रहा है। ठीक है, अब बताइए इस सिस्टम को अगर मैं एक वो लेता हूं सिस्टम ऑफ इंटरेस्ट, तो इस सिस्टम का मास धीरे धीरे बढ़ रहा है इधर से। यस सर। मैं सिस्टम क्या ले रहा हूं? सिस्टम में ले रहा हूं चेन lying on the floor। अब इसका मास धीरे धीरे बढ़ रहा है। चलिए ठीक है, तो बताइए इस सिस्टम की वेलोसिटी कितनी है? सिस्टम की, इस जो सिस्टम पड़ा हुआ है इसकी वेलोसिटी तो 0 है ना हमेशा। अच्छा, अब हमें देखना है कि इस सिस्टम पे किसी टाइम dt पे कितना मास ऐड हुआ है। तो किसी टाइम dt पे ये dx ऐड हुआ होगा, है ना।
तो डीएम कितना होगा इसका बताइए, इस छोटे से एलिमेंट डीटी में ऐड हुआ होगा तो इसका डीएम कितना होगा, डीएम क्या होगा, lambda d m by l लेमडा into डीएक्स। dx। अच्छा लेमडा क्या होगा अगर यूनिफॉर्म डेंसिटी है तो, टोटल मास m है और टोटल लेंथ कितनी है l इंटू dx। तो dm आपका है m इंटू l m बाय l dx। अब बताइए dm बाय dt कितना हो जाएगा, और dx बाय dt क्या है, वेलोसिटी है ये, समझ रहे कि नहीं है, m बाय l इंटू अंडर रूट 2gx। चलिए तो ये हमारे सारे कंपोनेंट आ गए। तो अब हम मास्टर इक्वेशन लिख लेते हैं, तो एफ एक्सटर्नल प्लस वीजी इंटू डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ एम। अब बताइए हमारे सिस्टम जो है उसका वेलोसिटी तो हमेशा जीरो ही, तो ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। एफ एक्सटर्नल, अब मैंने देखिए मैंने पॉजिटिव वहां इधर लिया हुआ है ना, पॉजिटिव या पॉजिटिव एक्स जो है इधर लिया हुआ है जो भी। तो बताइए सिस्टम के ऊपर फोर्स कौन कौन से लग रहे हैं, इसके ऊपर अभी एन ऊपर लग रहा है और एक लगेगा एमजी भी तो लगेगा नीचे, लगेगा। यस सर। यस सर। तो बताइए एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जी मैंने सर पॉजिटिव में mg है, नेगेटिव में n है, प्लस vg कितना है आपका √2gx है, ओके। अच्छा अब बताइए मुझे dm बाई dt कितना है यहां से, ठीक है। तो बताइए क्या होगा, ये आपका हो जाएगा n इज इक्वल टू, यहां तो हो जाएगा आपका mg प्लस कैपिटल M बाय L इंटू 2gx। अब बताइए स्मॉल m क्या है, स्मॉल m इसका मास है ना, तो इसका मास कितना हो जाएगा m बाय l इंटू x। n जो हो जाएगा 3m बाय l इंटू, इतना नॉर्मल फोर्स लगेगा किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। तो जैसे जैसे x बढ़ता जाएगा, मतलब जैसे जैसे आपकी चेन नीचे आती जाएगी वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, और जब पूरी की पूरी चेन हो जाएगी आपके पास 3 mg फोर्स लगेगा। तो डी एम बी बाई डी टी क्यों जीरो है, उसमें एक v वाला टर्म तो आएगा ना। नहीं तो मैं बता रहा हूँ ना कि mv क्या है, mv इज द मोमेंटम ऑफ सिस्टम। टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है सर वो। ये वाला सिस्टम का ये वेलोसिटी कांस्टेंट जीरो ही तो है हमेशा इसकी, सर उसमें डी एम बाई डी टी वाला टर्म तो जीरो नहीं है ना। लेकिन ये यहाँ पे जो लेते हैं ये सिस्टम का पी लेते हैं ना। हाँ हाँ, तो सर सिस्टम के पी में दो फैक्टर आएंगे ना अगर डिफरेंशियल पार्ट हम देख रहे हैं तो, क्योंकि मास भी तो ऐड हो रहा है उसमें डी एम बाई डी टी। सिस्टम के इसमें
तो दो पार्ट आएंगे ना डिफरेंशियल फॉर्म में देखे तो मोमेंटम नहीं, में। वो वाला टर्म यहाँ पर आ चुका है पहले से आपका, जो वो वाला टर्म यहाँ पर आ चुका है। यहाँ पर है जो है ये सिस्टम का मोमेंटम है dp by dt। तो ये जो यहाँ पे लिखते हैं सिस्टम का मोमेंटम लिखते हैं। सर उसको ब्रेक करेंगे तो अलग अलग होगा ना दो टर्म, और तो सर उसमें तक केवल एक जीरो होगा, जो वेलोसिटी वाला पार्ट है। मास वाला पार्ट कैसे जीरो? तो वेलोसिटी m वाला dp by dt लिखेंगे तो पार्ट तो रहेगा नहीं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ कि जब सिस्टम है उस सिस्टम का मोमेंटम तो जीरो है ना फाइनली, जो भी सिस्टम ले रहे हैं हम। तो जैसे फॉर एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको क्या है, आपको बताता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 9। उसमें क्या था कि कार्ट आगे v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आगे जा रहा था, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से आगे जा रहा था और फिर सैंड फॉल हो रही। तो यहां पर हमने किया क्या था, v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है सिस्टम का, तो p इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिया था, है ना। तो मतलब dp by dt हमने Yes, sir. f एक्सटर्नल, है ना, समझ गए बात। Yes, sir. और एक और क्वेश्चन नंबर हमारा था कौन सा वाला, 9 नंबर क्वेश्चन में नहीं 11 नंबर क्वेश्चन में सैंड इसमें कार्ट में ड्रॉप हो रही थी। नहीं ये आपने ये था, अच्छा और सर ये उसमें भी आपने dp by dt जीरो नहीं लिखा था सर, m dp by dt प्लस v भी लिया था। इधर था एक मिनट। ये 9th में शायद नीचे हो रहा था ना। हाँ हाँ 9th में सर वो नीचे लीक हो रहा था। सर तो इसमें f एक्सटर्नल जीरो आ गया था। आपने dp by dt जीरो नहीं लिया था, dp डेल्टा p कांस्टेंट लिया था और इसमें करके कुछ। नहीं, इसमें क्या कहा था कि f एक्सटर्नल प्लस vg इंटू dm by dt is equal to dp by dt। तो जब मेंटेन इट स्पीड तो v को मेंटेन करना है ना। ओके अच्छा, तो आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर जो है इसको ये mv था, तो dm by dt इंटू v। फिर v वाला पार्ट तो जैसे जीरो आएगा, मतलब वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा है क्योंकि वो आने के बाद रेस्ट में हो जाएगा। अच्छा लेकिन अच्छा, मास तो बीइंग एडेड ना उस पे, तो वही मैं पूछ रहा था। ओके जस्ट एक्सप्लेन। तो ये हमारे केस में था यहाँ पर n तो ऊपर लग रहा था, mg नीचे लग रहा था, f एक्सटर्नल तो आपका हो जाएगा mg माइनस n प्लस vg इंटू dm by dt इज इक्वल टू नहीं तो सर इससे ना अगर हम सॉल्व करते हैं तो mg इज इक्वल टू n आ जाता है और m यहाँ पे इंस्टेंटेनियस मास होगा सर। नहीं जस्ट 1 मिनट, यहाँ पर d by dt ऑफ m इंटू v, तो इसको हाँ सर वो जीरो होगा, क्योंकि जो dv by dt लिखते हैं तो सर उसमें जो दूसरा वाला वेटिंग मशीन का वो वेलोसिटी हो जाता है, वेलोसिटी वेटिंग मशीन का जीरो है। हाँ और जब सर v dm by dt लिखते हैं तो वेलोसिटी उसका जीरो है, तो इसलिए वो पार्ट पूरा जीरो हो जा रहा है। देखिए ये क्या है आपका, दिस इज dm by dt इंटू v और प्लस m इंटू dv by dt। तो अब यहाँ पर इसको हमने dm by dt इंटू v, हाँ तो ये v जीरो ही तो है। अरे देखिए ये d by dt ऑफ mv क्या है,
dm by dt into v plus m into dv by dt। तो dv by dt तो जीरो है ही, बट v भी तो हाँ, जीरो ही सर। है। इस हाँ, सिस्टम का v भी तो जीरो ही है ना। हाँ हाँ सर, तो 0 हो जाएगा। Yes, sir. हाँ, इसलिए जीरो हो रहा है ये, समझ के बाद। ओके। यहाँ पर देखिए सिस्टम का v जीरो नहीं था इसलिए आ रहा था वो यहाँ पे, है ना, समझ गए। हाँ सर, वो V0 नहीं था, वो V आ रहा था इसका। हाँ हाँ, यहाँ पर सिस्टम का v ही जीरो है, यू आर राइट। ठीक है, तो इसीलिए ये सेपरेटली भी जीरो ही होंगे दोनों। समझ गए वाला जो केवियट था, पॉइंट था, ये क्या दिक्कत थी। हाँ सर, हाँ सर, वो V अगर मैंने देखा नहीं सर अगर उसका। इसका v कुछ होता तो फिर आप सही बोल रहे, इसका कुछ हम्म। होता। चलिए इसको लिख लीजिए फिर। तो इसको करेक्ट मैं इसको यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा कि ये यहाँ पर v भी जीरो है और dv by dt भी जीरो। अब किसी को vg लेने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना। नो सर। हाँ, चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिस के लिए हम एक दो वो कर लेंगे प्रॉब्लम, तो आपको और क्लियर हो जाएगा। ये लिख लिया सबने। यस सर। चलिए अब मुझे एक एक करके आप vg बताते जाइए कि क्या होगा, है ना। तो सपोज आपका एक टैंक है, सपोज मिसाइल टैंक, ठीक है, जो कि वेलोसिटी v से जा रहा है। और सपोज यहां से फायर किया गया, यहाँ से कैनन बॉल्स को फायर किया जा रहा है एंगल थीटा पे, और ये u से फायर किया जा रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टैंक। तो बताइए यहाँ पर vg कितना होगा, मुझे बताइए, u cos थीटा माइनस b। है ना। तो देखिए vg क्या होता है, vg इज वेलोसिटी ऑफ एडेड और सब्सट्रैक्टेड मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। तो सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ मोशन तो इधर है ना। तो x Yes, में sir. बताइए सब्सट्रैक्टेड मास की वेलोसिटी कितनी है। तो सब्सट्रैक्टेड मास की वेलोसिटी टैंक के रिस्पेक्ट में तो है u cos थीटा, Yes, sir. प्लस में टैंक भी तो v से जा रहा है, प्लस v होगा। ये बात समझ में आएगी नहीं। Yes, sir. सर माइनस नहीं होगा। माइनस कैसे होगा बताइए, माइनस तो ये इधर जाता तो होता ना माइनस, Adding होगा। ये दोनों एक ही डायरेक्शन में तो है। ठीक है, ये प्लस क्यों होगा, क्लियर है ना सबको। Yes, sir. ओके, चलिए तो अब देखिए जैसे हमारा रॉकेट था उसमें इधर जा रहा था, तो कुल मिलाकर रॉकेट में मतलब थीटा कितना था, थीटा इज इक्वल टू 180 था ना रॉकेट में। तो इसीलिए sir. हमारा vg कितना आ रहा था, माइनस u प्लस वी आ रहा था, समझ के बात। क्योंकि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 180, तो कॉस थीटा माइनस 1 आ जा रहा था, तो इसीलिए ये माइनस u प्लस वी आ रहा था। चलिए आगे चलते हैं। ओके, तो ये आपका जो है हो चुका है अब वेरिएबल मास सिस्टम, ठीक है। सर एक सेकंड बैक साइड से। ओके सर, डन। चलिए तो ये आपका वेरिएबल मास सिस्टम वाले हो चुका है, ठीक है, सिंपल टॉपिक था। अब हम करते हैं ऑसिलेशंस वाला पार्ट। असाइनमेंट 4.1 वाला है ऑसिलेशंस। तो ये जो है हमने
पार्ट वाइज हमने सारे अलग अलग चैप्टर्स में ये सब कर रखा है, ठीक है। नाउ वी जस्ट हैव टू कनेक्ट डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने जो जो कर रखा है वो मैं आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली टाइप की प्रॉब्लम्स होती है उसमें एसएचएम की, ठीक है, जो कि हमने कर रखा है, एंड दैट इज एसएचएम about stable equilibrium position in a given potential. Vx, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब SHP, स्टेबल SEP। तो ये हमने कर रखा है सारा, Yes, sir. है ना। तो इसमें अगर Vx आपका दिया हुआ है कुछ, Vx है, और सपोज ये x0 आपका है स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब क्या होता है बताइए। सबसे पहली बात तो इसका dV/dx 0 होगा। Yes, sir. Yes, sir. दूसरी कंडीशन क्या है, ये ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा, Positive. Zero. ग्रेटर देन। अब इसके अबाउट जब ऑसिलेट करेगा तो हमें निकालना है टाइम पीरियड क्या है, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं बताइए। पहले के निकालते हैं। Yes, sir. के क्या होता है, d2v by dx square. Value x0 point पर. और ओमेगा होता है आपका अंडर रूट के बाय Root k by m. टाइम पीरियड होता है 2 pi by omega. चलिए तो एग्जांपल देख लेते हैं इसका। सपोज आपका Vx है, आपका Vx आपका है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर जस्ट एक्स स्क्वायर लेते हैं। तो बताइए इसका ग्राफ इस तरह से होगा। तो इसका स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है, क्या है स्टेबल इक्विलिब्रियम पॉइंट कौन सा है इसका, 0 0. जो है ना, ठीक है। के आपका हो जाएगा del2v बाय del x स्क्वायर एट x इज इक्वल टू 0। तो बताइए del v बाय del x कितना है, del v बाय del x इज 2x, del2v बाय del x स्क्वायर इज 2, तो del2v बाय del x स्क्वायर इज 2 आ जाएगा। तो ओमेगा आपका आ जाएगा √2 बाय। इसमें डिफरेंट तरह के प्रॉब्लम्स हमने काफी सारे किए। तो एक तो इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। चलिए तो इस तरह की प्रॉब्लम्स में आप होमवर्क में करके लाइएगा, इसी में 4.1 के। ठीक है, कौन कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 करके लाइएगा आप, क्वेश्चन नंबर 2 करके लाइएगा। सारे स्टेबिलिटी एनालिसिस वाले हैं जो हमने किए थे एनर्जी वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7। ये आप होमवर्क करके लाइए। चलिए अब इसमें एक और तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, वो देखते हैं। ये 5 सवाल आपके स्टेबिलिटी एनालिसिस हैं। हो गया सबका ये। Yes, sir.
Yes, sir. चलिए, सो अब हम देखते हैं एक और तरह की प्रॉब्लम्स होती है जो कि होती है कि रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। एक स्टैंडर्ड एक इसका टर्म होता है, पीरियड होता है, फॉर्मूला टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन किसी भी टाइम के एंड टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह का होगा कि if a particle with energy E is oscillating under a potential ux is equal to a x to the power n. Calculate relation between t and e। मतलब कि आपको t is proportional to e to the power something है, वो निकालना है। चलिए, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम कैसे हैंडल करते हैं वो देखते हैं। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E इज द टोटल एनर्जी, तो एनर्जी आपको कुछ कांस्टेंट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए, तो टोटल एनर्जी क्या होती है? E इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। E इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? हाफ m इंटू v स्क्वायर। v को मैं क्या लिख सकता हूँ? x डॉट स्क्वायर लिख सकता हूँ। यस पोटेंशियल एनर्जी इज a x टू द पावर n। चलिए, तो मैं इसमें लिख सकता हूँ अब अगर मैं इसको करूँ यहाँ से, तो यहाँ से आ जाएगा, सिंप्लीफाई करूँ अगर मैं, तो x डॉट जो कि होता है dx बाई dt इज इक्वल टू आ जाएगा 2 बाय m इंटू e माइनस a x टू द पावर n का अंडर। बताइए आएगा ये? यस सर मैं इधर ले आया और e माइनस से आ गया और 2 ऊपर ले गया, m नीचे ले गया, उसका अंडर। तो यहां से आपका आ जाएगा dt इज इक्वल टू dx बाय अंडर रूट ऑफ 2 बाय m इंटू e माइनस a x टू द पावर। चलिए, तो यहां से बताइए आप, अब मैं सपोज इसको 1 अपॉन अंडर रूट 2m तो बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब सपोज अंडर रूट e को बाहर निकाल लेता हूं मैं, तो बचेगा यहां से इंटीग्रल dx बाय 1 माइनस a x टू द पावर n बाय। चलिए, अब देखिए,
अब ए एक्स टू द पावर एन क्या है बताइए? एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, यस सर। और ई भी एनर्जी है ना? तो अगर मैं कोई क्वांटिटी y को डिफाइन करता हूं विच इज a x टू द पावर n बाय e, तो y जो है एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होगी, यस सर। क्योंकि ऊपर भी एनर्जी है नीचे भी एनर्जी है, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। ठीक है, तो आपका dy क्या हो जाएगा यहाँ से? तो सपोज x क्या हो जाएगा यहाँ से? x हो जाएगा आपका y e बाय a टू द पावर 1। तो बताइए dx कितना हो जाएगा आपका? dx आपका कितना हो जाएगा? 1 बाय n y e टू द पावर -1। ये नहीं आएगा, dx आपका हो जाएगा ये e और a तो कांस्टेंट है ना, e बाय a टू द पावर 1 बाय n तो सेम रहेगा, y टू द पावर 1 बाय n का हो जाएगा 1 बाय n, और y टू द पावर 1 बाय n। ठीक है, चलिए तो यहां से आपका जो आ जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू, ये इधर तो है 1 बाय रूट m, तो ठीक है ये कांस्टेंट है, इधर है नीचे 1 बाय रूट e इंटू dx, तो dx आपका है e टू द पावर 1 बाय n, और ये है 1 बाय n y टू द पावर 1 बाय n माइनस 1, और यहाँ पे dy भी आएगा, dy बाय अंडर रूट 1 माइनस 1। ठीक है, आपका आ जाएगा t इज प्रोपोर्शनल टू, इधर है e टू द पावर 1 बाय n, और इधर क्या है e टू द पावर 1 बाय 2 है, e टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 बाय 2, और यहां पर देखिए कोई भी इंटीग्रेशन आएगा, ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, तो इसका कुछ भी इंटीग्रेशन आएगा ये कांस्टेंट आएगा। यस सर। इसीलिए आपका टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आ गया? e टू द पावर 1 बाय n माइनस 1 बाय 2 के प्रोपोर्शनल आ गया। तो खाली प्रोपोर्शनैलिटी पूछी जाती है ऐसे क्वेश्चन? हाँ, सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी। सर y कांस्टेंट कैसे हो गया सर? y नॉट डायमेंशनलेस होगा ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। हाँ, तो आप कह रहे सर उसका इंटीग्रल है जो कांस्टेंट आएगा। हाँ, कुछ भी आएगा, मतलब वो डायमेंशनलेस होगा ना, कुछ कांस्टेंट। ठीक है सर प्रोपोर्शनलिटी तो हम मतलब लिमिट्स में इंटीग्रेट प्रोपोर्शनलिटी करेंगे। की बात कर रहा हूँ मैं, एग्जैक्ट वैल्यू कुछ नहीं बात कर रहा हूँ प्रोपोर्शनलिटी की, कि e के साथ में कैसे वेरी करेगा टाइम। अब बताइए सर y में भी तो एक टर्म है ना? सर जो क्या भाई? dx by dt लिखे हैं हाँ, सर वो कैसे लिखे हैं थोड़ा प्लीज? ये यस सर, dx by dt कैसे लिखें? इसको इधर ले गए और फिर अंडर उसमें जो राइट साइड वाला में, राइट साइड जो टर्म लिखे हैं ये dx by dt इक्वल कुछ टर्म लिखे हैं ना? हाँ हाँ सर, ठीक है। यही। इसको इधर ले गया मैं। अच्छा, यहाँ से किए हैं, ठीक है ठीक। सर डायमेंशन मतलब ओनली अगर डायमेंशन मतलब प्रोपोर्शनलिटी पूछा जाता है तो हम लोग डायमेंशन फार्मूला में भी प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए मतलब मेथड पढ़े हुए थे, क्या वहां से भी कर सकते हैं? प्रोपोर्शनलिटी निकालना है तो क्या कर सकते हैं, फिर से बोलिए। डायमेंशनल फार्मूला जो हम लोग निकालते हैं उस चैप्टर में भी हम लोग मतलब प्रोपोर्शनलिटी निकालने के लिए कैसे डिपेंड करता है, यस यस, वहाँ पे कुछ पावर आता था, वहां से भी किया जा सकता है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब बताइए मुझे, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्प्रिंग मास सिस्टम है,
तो उसमें टाइम पीरियड एनर्जी के साथ कैसा रिलेशन देगा, बताइए। क्वेश्चन है आपका कि स्प्रिंग मास सिस्टम है, तो उसमें फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड एनर्जी, प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन। 1/√T। ये लिख लिया सबने ये वाला? यस सर। Constant हो जाएगा sir। तो e पावर 0 आएगा सर। है ना? तो मैंने आपसे पूछा है कि स्प्रिंग मास सिस्टम, स्प्रिंग मास सिस्टम में यू क्या होता है? हाफ kx²। मतलब n की वैल्यू 2 होती है ना, t किसके प्रोपोर्शनल आएगा? e टू द पावर 1/2 - 1/2। t इज प्रोपोर्शनल टू e टू द पावर 0। मतलब t जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एनर्जी है। मतलब एनर्जी कितनी कम ज्यादा हो, टाइम पीरियड वही का वही रहेगा। यस सर। अगर मैं लिखूं आपका ux आपका सपोज दिया हुआ है आपका x टू द पावर 4 दिया हुआ है, क्या हो जाएगा आपका? n इज इक्वल टू 4 -1/2। -1/2 -1/4। 1/4 -1। तो दूसरे जो है इस तरह के आपके प्रॉब्लम्स होते हैं, ठीक है। चलिए, मल्टीपल टर्म्स मतलब क्या होगा? क्या हुआ? मल्टीपल टर्म्स हो सर, और डिक्रीजिंग पावर, जैसे पॉलिनोमियल कोई ले लेते हैं हम सर फोर्थ ऑर्डर का, तो क्या होगा? मल्टीपल टर्म्स में हम एनर्जी में रिलेशन नहीं निकाल पाएंगे इतना एग्जैक्ट। x4 x3 x² ये बोल रहे हैं आप? हाँ, तो उस केस में हम नहीं निकाल पाएंगे डायरेक्ट। चलो, तो ये तो हमारा हो गया कि स्टेबिलिटी एनालिसिस वाले जो प्रॉब्लम्स है एसएचएम में इस तरह के आते हैं। एक तो आते हैं डायरेक्टली आपको यू दिया हुआ है ना, कुछ गिवन है, और उससे आपसे पूछा है कि व्हाट इज टाइम पीरियड या व्हाट इज ओमेगा, और दूसरा दिया हुआ है टी वर्सेस ई पूछा है। ग्राफ पूछ सकता है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि टाइम को दुगना किया है तो एनर्जी कितनी होगी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके हो गए स्टेबिलिटी एनालिसिस वाले कि गिवन अ पोटेंशियल क्या क्या होगी, ठीक है। अब जो है एक और प्रकार के प्रॉब्लम जो हमने कर रखे हैं वो सर कर एक रखे हैं। डाउट है हाँ पूछिए। ऑसिलेशन मतलब स्टार्टिंग अभी हम लोग किए तो वहाँ पर हम लोग एक एसएचएम वर्ड यूज किए हैं। हाँ तो सर एसएचएम में जो हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लीनियर पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है ना, मतलब पावर 1 होना चाहिए एक्स का। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि जो भी हम लोग नहीं, प्रॉब्लम के लास्ट में इसीलिए मैंने आपको, जरूरी नहीं है कि एसएचएम हो वहां पे। ओके सर तब तो सही है सर, मतलब एसएचएम होगा तब तो सर दिक्कत थोड़ा होगा ना। ऑसिलेशन है वो। यस सर। एक हमने कर रखा है, एक और प्रॉब्लम जो हमने रिजिड बॉडी में कर रखा है, आपको याद होगा अभी, कंपाउंड पेंडुलम ना, ये भी ऑसिलेट कर रहा था। तो कंपाउंड पेंडुलम में आपका मतलब क्या है कि रिजिड बॉडी कहीं से फिक्स है ना, और उसका जो है सपोज सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है उसका, डिस्टेंस डी पर है। तो बताइए टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन क्या था हमारा? 2 पाई अंडर रूट क्या था? I/mgl। ये था ना। यस सर। जहां पर आई था आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
एक्सिस ऑफ rotation. डी है आपका है डिस्टेंस ऑफ center of mass, the perpendicular distance of center of mass from axis. क्वेश्चंस भी हमने किए थे बहुत सारे. सपोज आपका एक देयर इज अ डिस्क, इसका मास m है, रेडियस r है. सपोज आपका इस इन द प्लेन ऑसिलेशन हो रहा है. इन प्लेन ऑसिलेशन हो रहा है तो इसकी एक्सिस किधर होगी? आउट ऑफ द प्लेन होगी. यस बताइए d कितना होगा इसका? r होगा. और I कितना होगा बताइए? I इज एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो I इज IC प्लस md स्क्वायर. इन प्लेन ऑसिलेशन आपने क्या बोला वो? मतलब कि जो प्लेन और ये प्लेन दिया हुआ है ना आपको 2D प्लेन, इसमें ऑसिलेशन हाँ, होगा. हाँ. I इज इक्वल टू IC. व्हाट इज IC? माइनस स्क्वायर बाय 2 IC मतलब एक्सिस यहाँ से पास हो रही है, तो IC होता है mr स्क्वायर बाय प्लस mr स्क्वायर. तो I टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाय mgt 3/2 mr स्क्वायर बाय m इंटू g इंटू d इज r. तो टाइम पीरियड आएगा 2 पाई अंडर रूट 3/2 3r बाय 2. तो एक इस तरह की प्रॉब्लम्स होती है. तो अब एक बार आप क्वेश्चन नंबर ट्राई कीजिए. क्वेश्चन नंबर 31 ट्राई कीजिए एक बार. A circular disc of radius r is suspended from a point on its surface, such that it oscillates about an axis passing through the point of suspension and perpendicular to its plane. For what distance of point of suspension from the center of the disc, the time period of oscillation is minimum. ठीक है. कितने डिस्टेंस पे जो है टाइम पीरियड मिनिमम होता है? उसने बोला कि किसी एक डिस्टेंस पे हिंज किया है, तो कितने डिस्टेंस पे उसको हिंज करें ताकि आपका टाइम पीरियड मिनिमम. बताइए आई क्या होगा? mr square by 2 by 2 plus md square. टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट I बाय mgt. mgt. ठीक है. तो आपका m तो कैंसिल हो जाएगा. तो टाइम पीरियड आपका हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर
तो बताइए टाइम पीरियड मिनिमम होगा, तो इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर वाली क्वांटिटी ये मिनिमम होगी, है ना? मतलब एफ डी इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय डी, ये मिनिमम होगा। आर स्क्वायर बाय 2 नहीं होगा सर? सर आर स्क्वायर प्लस 2d बाई 2gd सर वहाँ 2 का फैक्टर कहाँ गया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया सर आपने एम स्क्वायर बाय 2 लिखना था। एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस 2 एम डी स्क्वायर ना, 2d स्क्वायर हाँ सर। बाय 2 यहाँ पे। ये अब ठीक है। यस सर। तो टाइम पीरियड मिनिमम होगा मतलब एफ डी मिनिमम होगा, तो इसका मिनिमम क्या होगा, कैसे निकालेंगे मिनिमम? डेल एफ बाय डेल टी 0, तो पहला वाला टर्म कितना है, आर स्क्वायर बाय डी, तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर बाय डी स्क्वायर, प्लस दूसरा वाला टर्म क्या है 2 इंटू डी, तो उसका डी हो जाएगा 0, तो आपका डी हो जाएगा यहाँ से 2, डी हो जाएगा आपका आर स्क्वायर बाय 2 का अंडर आर बाय, इतने पे जो है ऑप्टिमम होगा ये। तो अब मिनिमम है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे, डबल डेरिवेटिव, इसका डबल डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 आर स्क्वायर बाय डी क्यू, ग्रेटर देन 0। दिस इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है d इज इक्वल टू आर बाय रूट 2 इज मिनिमम, आंसर आपका आर बाय रूट 2 हो जाएगा। तो अब इसमें आपको होमवर्क करना है, ये सारी चीजें हम कर चुके हैं पहले ही ना, जस्ट फॉर द रिवीजन। आपका क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 30, 31 हमने कर ही लिया अभी, 32, 33, ठीक है। तो 5 सवाल ये वाले और 5 सवाल पिछले वाले, ठीक है? ये आपको करना है। ये कौन से चैप्टर्स में असाइनमेंट वो अपलोडेड है? असाइनमेंट 4 वाले में, सब 4 चल रहा है। थ्रू अपलोडेड है क्या असाइनमेंट? मेरे में अपलोड मैंने बोल तो दिया था, एक बार चेक कर लेना, हो गया होगा शायद। ओके। तो ये है आपके दूसरे तरीके के प्रॉब्लम्स जो आपके रिजिड बॉडी में कर रखे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ये आपके 10-12 जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो कर लीजिएगा, और फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा, उसके बाद में आपको फ्लूइड है बचा है, फिर एसटीआर शुरू करें। फ्लूइड कितना बड़ा है? फ्लूइड भी छोटा ही है, इतना बड़ा नहीं है, मतलब इसमें एलिमेंट्री टॉप कुछ ही, एक बायोन्सी फोर्स वाला कॉन्सेप्ट है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट है, एक कंटिन्यूटी इक्वेशन वाला है, और एक बर्नौलीज थ्योरम। ये 3-4 कॉन्सेप्ट है बस, बाकी ज्यादा नहीं, छोटे छोटे। एसटीआर का कितना चलेगा सर? एसटीआर का देखते हैं, एसटीआर थोड़ा बड़ा है इन टॉपिक से, तो उसमें क्योंकि अलग अलग कंपोनेंट से थोड़े थोड़े उसको स्लो तरीके से करेंगे। ओके सर। चलिए फिर मिलते हैं कल, ठीक है। ये जो 10 क्वेश्चन दिए हैं हमने पहले भी कर रखे हैं, इनको आराम से कर लीजिएगा, ठीक है। और कल हम इनको डिस्कस करके फिर आगे चलेंगे। ओके ओके सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. थैंक यू सर। Thank you. Thank you, sir.